Hello, dear students. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, welcome to your science classes. Bachcho, I am your science teacher, and from now on, I'll be teaching you all science. So, bachcho, start करते हैं आज की class with chapter number 1, that is reproduction in plants. So, bachcho, in this chapter, we are going to learn about reproduction from seed, reproduction from other parts of plants, and then we are going to learn about crops. So bachcho, first look at the pictures and answer the following questions. So bachcho, take the necessary factors required for the growth of plants. So bachcho, आप लोगों को यहाँ पे उन factors को टिक करना है जो कि plants की growth के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. So बच्चों, we have water जो कि plant की growth के लिए essential है. Then we have sunlight जो कि बच्चों again plant की growth के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Then बच्चों next we have soil and बच्चों plants तो without soil grow ही नहीं कर पाएंगे, so that is also important part. Then बच्चों we have write the names of plant that grows in desert. तो आपको उन plants के नाम लिखने हैं जो कि desert में grow करते हैं. So बच्चों first plant we have cactus. Then बच्चों next we have name an aquatic plant and आपको यहाँ पे अब उन plant का नाम लिखना है जो कि पानी के अंदर grow करते हैं. Now बच्चों plants have developed remarkable ways to reproduce and ensure the continuation of their species. So बच्चों plants के पास क्या होता है? Plants different तरीके से reproduce करते हैं and इस तरह से वो अपनी species को continue रखते हैं. Now बच्चों reproduction is a natural process by which plants create new individuals. So बच्चों reproduction क्या है? ये एक natural process है जो कि plants के अंदर हो रहा है and by this process plants जो है वो अपने ही जैसे new individuals बनाते हैं. Now बच्चों this process can happen through seeds. अब बच्चों ये process किसके through हो सकता है? Seeds के through हो सकता है या फिर other parts of plants की वजह से हो सकता है. Now बच्चों depending on the species and environmental conditions हम लोग ये check कर सकते हैं कि whether plant seeds के through reproduce करेगा या फिर अपने parts के through reproduce करेगा. Now in this chapter we will explore the different methods by which plants reproduce and बच्चों इस chapter के अंदर हम लोग different methods देखेंगे जिससे plants जो है वो reproduce कर सकते हैं and the importance of each steps in the process. So first we have reproduction from seeds. So बच्चों one of the most common methods of plant reproduction is through seeds. यानी कि बच्चों plants जो है वो most commonly कैसे reproduce करते हैं? With the help of seeds. यानी कि वो अपनी seed से एक और नया plant जो है वो बना पाते हैं. Now बच्चों when you look at a tree or a flowering plant, it's hard to imagine that it all began as a small seed. बच्चों जब आप लोग इतने बड़े बड़े trees को देखते हो तो क्या आप लोग ये imagine कर सकते हो कि वो एक इतना बड़ा tree इतनी छोटी सी seed से बना होगा? Now seed contains the genetic material needed to grow into a mature plant. अब बच्चों सीड के अंदर ऐसा होता क्या है जिससे उससे नए प्लांट्स बन जाते हैं? सो सीड के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल एंड बच्चों ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जो कि सारी इंफॉर्मेशन लेकर चलता है कि प्लांट जो है वो क्या फ्रूट्स बनाएगा, क्या स्टेम्स निकालेगा, हेल्दी होगा या अनहेल्दी होगा. सो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस जेनेटिक मटेरियल में होती है एंड ये जेनेटिक मटेरियल कहाँ होता है? सीड के अंदर. Inside each seed is a tiny undeveloped plant known as embryo. And बच्चों हर seed के अंदर एक छोटा सा undeveloped plant होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? Embryo. Seeds are formed when pollen from one plant fertilizes the ovule of another, leading to the creation of new life form. अब बच्चों क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सीड्स जो है वो बनते कैसे हैं? क्या सीड्स ऑलरेडी एक प्लांट के अंदर होते हैं? सो नहीं बच्चों, होता क्या है कि हमारे एक प्लांट से आता है पोलन ग्रेन्स एंड बच्चों जब ये पोलन ग्रेन्स किसी दूसरे प्लांट के ऊपर जाकर गिरते हैं सो पोलन ग्रेन्स और ओव्यूल्स के बीच में क्या होता है? फ्यूजन होता है जिसकी वजह से एक नया लाइफ जो है वो एग्जिस्टेंस में आता है. Now बच्चों the seeds then fall to the ground
ground. अब बच्चों इस तरह से सीड तो बन जाता है और ये सीड जो है वो या तो ग्राउंड पे गिर जाते हैं या फिर ये कैरी अवे हो जाते हैं टू अ सूटेबल प्लेस जहां पे ये लोग ग्रो हो सकते हैं एक न्यू प्लांट में अंडर द राइट कंडीशन. सो बच्चों प्लांट को ग्रो होने के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट चाहिए होता है एंड इस तरह से सीड्स जो है वो एक परफेक्ट एनवायरनमेंट को फाइंड आउट करते हैं. देन बच्चों वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ सीड. सो हम लोगों ने इतना कुछ पढ़ लिया सीड के बारे में, बट नाउ लेट्स सी कि सीड जो है वो दिखता कैसा है एंड सीड का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है. सो बच्चों A seed may seem simple on the outside. बाहर से हमको सीड बहुत ही ज्यादा सिंपल लग सकता है, बट बच्चों इनसाइड इट हैज एवरीथिंग नीडेड टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ. एंड बच्चों सीड के अंदर वो सब कुछ होता है जो कि एक न्यू लाइफ को स्टार्ट करवा सकता है. अ सीड कंसिस्ट ऑफ 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स. सीड्स के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं एंड व्हाट आर दोज? द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीड कोट. सो बच्चों सीड की एक आउटर मोस्ट लेयर होती है, एक या आउटर प्रोटेक्टिव कोट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीड कोट. देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव द फूड रिजर्व. एंड बच्चों सीड के अंदर क्या होता है? एक फूड रिजर्व होता है जो कि फूड प्रोवाइड करवाता है. एंड देन हमारे सीड के अंदर होता है एक एम्ब्रियो. एंड बच्चों ये फूड रिजर्व जो है वो इसी एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करवा रहा होता है. सो बच्चों सीड कोट का काम क्या होता है? सीड कोट जो है वो एक शील्ड की तरह बिहेव करता है, यानी कि ये प्रोटेक्ट करता है सीड को फ्रॉम डैमेज एंड प्रिवेंट करता है कि सीड जो है वो ड्राई आउट ना हो जाए. देन बच्चों फूड रिजर्व क्या करता है? वो स्टोर करता है न्यूट्रिएंट्स को विच द सीडलिंग यूजेस एज इट ग्रोस. सो बच्चों यहाँ पे जब खाना होगा उसी की वजह से तो हमारा एम्ब्रियो जो है वो ग्रो कर पाएगा. देन बच्चों एट द सेंटर ऑफ इट ऑल क्या पड़ा होता है? एम्ब्रियो. एंड बच्चों एम्ब्रियो क्या होता है? इट इज द पार्ट ऑफ सीड दैट विल इवेंचुअली स्प्राउट एंड डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट. सो एम्ब्रियो ही है जो कि क्या बनेगा? एक नया प्लांट बनेगा, बट वो कब बनेगा? जब उसको राइट कंडीशंस मिलेगी. सो बच्चों इस तरह से हमारा एक सीड जो है वो अंदर से दिखता है. वी हैव सीड कोट एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास क्या है? फूड स्टोर. एंड इधर छोटे से पार्ट में आपको क्या दिख रहा है? एक एम्ब्रियो. ना बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सीड्स वेरी इन साइज. सो बच्चों सीड्स का जो है वो साइज डिफरेंट होता है, शेप्स भी डिफरेंट होती है एंड इवन कलर भी डिफरेंट होता है. और ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्लांट स्पीशीज के ऊपर. बट बच्चों इन सारी सीड्स का पर्पस जो है वो सेम होता है एंड वो क्या होता है? टू स्टार्ट द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट. Now बच्चों we have functions of a seed. So बच्चों seed जो है वो एक critical role play करते हैं in the life cycle of plants. Not only do they carry the genetic blueprint for the next generation, but they also provide a plant with the necessary tools to survive in challenging environment. तो बच्चों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सीड के अंदर खाली जेनेटिक मटेरियल ही नहीं होता, बट सीड के अंदर कुछ टूल्स भी होते हैं जिससे प्लांट जो है वो अपने आप को सरवाइव करवा सकता है एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर. सो बच्चों सीड कैन लाई डोरमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड्स. सो बच्चों यहाँ पे डोरमेंट का मतलब क्या है? कि सीड जो है वो अपने आप को एक प्लांट में कन्वर्ट होने से रोक सकता है तब तक जब तक उसको राइट कंडीशंस नहीं मिल जाती. एंड बच्चों ड्यूरिंग दिस टाइम the food stored within the seed वो प्रोवाइड करवाता है necessary energy for the embryo to begin growing when moisture and warmth become available. अब बच्चों होता क्या है कि जैसे ही सीड डेवलप होने लग जाती है एक न्यू प्लांट के अंदर, तो ये जो फूड रिजर्व हमारी सीड के अंदर होता है वो एम्ब्रियो को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है ताकि वो स्प्राउट हो सके. एंड ये वो कब करता है? जब उसको राइट वेदर कंडीशंस मिलती है, यानी कि मॉइस्चर और वार्मथ मिलता है. So बच्चों seeds are designed to survive extreme weather conditions. So बच्चों seeds का डिजाइन ही कैसा होता है कि वो extreme weather conditions को भी survive कर सकता है, ensuring that plants can reproduce even in harsh environments. And इससे बच्चों क्या ensure हो सकता है कि plants जो है वो reproduce कर सकते हैं harsh environments में भी.
ना बच्चों, वंस द सीड हैज स्प्राउटेड, जैसे ही सीड एक बार स्प्राउट हो जाता है, सो यंग प्लांट, जिसको हम सीडलिंग भी बोलते हैं, वो पूरा का पूरा किसके ऊपर रिलाई करता है? स्टोर्ड फूड के ऊपर, अपने नरिशमेंट के लिए। एंड वो कब तक उसके ऊपर रिलाई करेगा? जब तक वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा थ्रू फोटोसिंथेसिस। Now, बच्चों, we have germination of a seed. So, बच्चों, germination is the fascinating process by which seed transforms into a seedling. So, बच्चों, germination एक ऐसा process है जिसमें seed जो है वो convert हो जाता है seedling के अंदर, यानी कि एक नए plant के अंदर. So, बच्चों, ये होते हैं stages of germination of seed, and आप लोग देख सकते हो कि एक seed से germination के process में एक seed जो है वो convert हो चुका है एक पूरे new plant के अंदर. ना बच्चों, फॉर जर्मिनेशन टू टेक प्लेस, जर्मिनेशन होने के लिए सीड को चाहिए होते हैं स्पेसिफिक कंडीशंस, जैसे कि राइट अमाउंट ऑफ वाटर, ऑक्सीजन एंड फेवरेबल टेम्परेचर. सो बच्चों, जब सीड को ये सारी चीजें मिलेगी तभी वो जर्मिनेट कर पाएगा. नाउ व्हेन अ सीड इज प्लेस्ड इन सॉइल, जब बच्चों सीड को सॉइल के अंदर रखा जाता है तो वो एब्जॉर्ब करता है वाटर को, एंड वाटर को एब्जॉर्ब करने के साथ साथ वो क्या होने लग जाता है? स्वेल होने लग जाता है. ना बच्चों, सीड कोट जो है वो अब क्या होता है? सॉफ्ट हो जाता है, एंड जो अंदर एम्ब्रियो होता है वो ग्रो होने लग जाता है. Now बच्चों, as the seed continues to absorb water, and जिस तरीके से seed water को absorb करती जाती है, so हमारा seed जो है वो expand होता चला जाता है. कब तक? जब तक सीड कोट जो है वो बर्स्ट नहीं हो जाता और ओपन ना हो जाए. अब बच्चों, जैसे ही वो ओपन हो जाएगा, सो उससे होगा क्या कि रूट जो है वो इमर्ज होगी, यानी कि सबसे पहले क्या निकलेगी? रूट्स निकलेगी. बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे जैसे हमारा सीड जो है वो स्वेल हो रहा है, सो उसके अंदर से क्या निकल रही है? रूट्स निकल रही है. ना बच्चों, ये रूट क्या करेगी? दिस रूट विल एंकर द प्लांट टू द सॉइल, यानी कि ये सॉइल के अंदर जाकर फिक्स होएगी एंड एब्जॉर्ब करेगी न्यूट्रिएंट्स को. उसके जस्ट बाद बच्चों क्या होगा? शूट जो है वो बाहर निकलेगी. एंड बच्चों, यहाँ पे इस डायग्राम में भी आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास सबसे पहले रूट्स निकल रही है, एंड देन उसके बाद बच्चों यहाँ से शूट्स निकली. इसके बाद बच्चों, pushing through the soil to reach sunlight where it will begin the process of photosynthesis, and shoots निकलती रहेगी जब तक उसको sunlight ना मिल जाए, and वहां से वो start करेगी process of photosynthesis, and इस तरह से plant जो है वो अपना खाना खुद बना पाएगा. So बच्चों, ये था पूरा process germination का. Now we have an amazing fact. Some seeds can remain dormant for hundreds of years. So बच्चों, कुछ seeds जो है वो dormant condition में रह सकती है 100 of years तक before germinating under the right condition. And बच्चों, oldest known seed जो कि germinate करी है successfully after 2000 year old date palm seed found in Israel. So बच्चों, हमारे पास एक ओल्ड डेट पाम सीड है जिसने 2000 ईयर बाद क्या करा है? जर्मिनेशन किया है. एंड ये कहाँ पे था? ये था इजराइल में. ना बच्चों, वी हैव डिस्पोजल ऑफ सीड्स, यानी कि अब सीड जब बन जाती है तो उसके बाद वो ट्रैवल कैसे करती है? सो बच्चों, वन सीड्स आर फॉर्म्ड, इनको स्प्रेड आउट होना होता है ताकि ये डेवलप हो पाए न्यू लोकेशंस में. एंड बच्चों, सीड डिस्पर्सल इज द प्रोसेस जिससे सीड्स जो है वो स्कैटर हो पाती है फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, यानी कि अपने पेरेंट से वो इधर उधर दूर जा पाती है. This ensures that new plant have enough space, sunlight and nutrients. And बच्चों, इसके लिए हमारे पेरेंट प्लांट के पास क्या होना चाहिए? Enough space, sunlight and nutrients होने चाहिए to grow without competing with the parent plant. ना बच्चों, सीड्स जो है वो डिस्पर्स होते हैं थ्रू वेराइटी ऑफ मेथड्स, यानी कि सीड्स बहुत सारे मेथड से स्कैटर हो सकते हैं, अपने पेरेंट प्लांट से दूर हो सकते हैं. एंड इन मेथड्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? विंड, वाटर एंड एनिमल्स. सो इनकी वजह से सीड्स जो है वो स्कैटर होती है. Now बच्चों, some plants like dandelions have light seeds that are carried by the wind. So बच्चों, dandelion plants की जो seeds होती है वो इतनी ज्यादा हल्की होती है कि वो wind से ही उड़ जाती है.
अदर सीड्स लाइक कोकोनट बच्चों ये फ्लोट होते हैं वाटर पे अंटिल वो एक न्यू शोर पे ना पहुंच जाए। देन बच्चों एनिमल्स जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन सीड डिस्पर्सल। एंड ये क्या करते हैं बच्चों, एनिमल्स जो है वो फ्रूट्स को खाते हैं जिसकी वजह से वो स्प्रेड करते हैं सीड्स को इन देयर वेस्ट। Now, बच्चों, additionally, some plants use explosive mechanisms to throw their seeds far away. अब बच्चों कुछ plants क्या करते हैं, वो explosive mechanism का use करते हैं, यानी कि वो burst out होते हैं अपने seeds को इधर उधर travel करवाने के लिए। Now बच्चों नेक्स्ट टॉपिक वी हैव रिप्रोडक्शन फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे प्लांट्स रिप्रोड्यूस कर पाते हैं अपने ही कुछ पार्ट्स की हेल्प से। ना बच्चों सीड्स जो है वो कॉमन वे होता है जिससे प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं, बट कुछ प्लांट्स ने डेवलप किया है ऑल्टरनेटिव मेथड्स को जिससे उनका सर्वाइवल जो है वो इंश्योर रहता है। सो बच्चों प्लांट्स जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एंड बच्चों वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें हम लोग प्लांट्स के पार्ट्स का यूज करते हैं एक नया प्लांट ग्रो करने के लिए। सो बच्चों वेयर न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम पार्ट्स, एंड वो पार्ट्स क्या होते हैं, रूट स्टेम्स और लीव्स। फॉर एग्जाम्पल बच्चों पोटैटो प्लांट कैन स्प्राउट न्यू प्लांट्स फ्रॉम इट्स अंडरग्राउंड स्टेम्स। सो बच्चों पोटैटो प्लांट क्या कर सकता है, वो स्प्राउट कर सकता है न्यू प्लांट्स को अपने अंडरग्राउंड स्टेम से, एंड इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूबर्स। सिमिलरली बच्चों सम प्लांट्स जैसे कि स्पाइडर वो क्या करते हैं, दे सेंड आउट रनर्स दैट टेक रूट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। दीज मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इससे बच्चों हो क्या रहा है, प्लांट्स जो है वो अपने आप को स्प्रेड कर पाते हैं एंड कॉलोनाइज कर सकते हैं न्यू एरियाज में बहुत जल्दी विदाउट रिलाइंग ऑन सीड्स। नाउ नेक्स्ट वी हैव क्रॉप्स। सो बच्चों क्रॉप्स जो है वो क्या होती है, क्रॉप्स प्लांट्स होते हैं जिनको हम लोग कल्टीवेट करते हैं यानी कि उगाते हैं फॉर फूड, फाइबर और अदर यूजेस। फार्मर्स बच्चों वो रिलाई करते हैं क्रॉप्स के ऊपर ही ताकि वो क्रॉप्स क्या करे, वो प्रोवाइड करे फूड फॉर द पॉपुलेशन, एंड देन उन क्रॉप्स से हम लोगों को बहुत सारे रॉ मटेरियल्स भी मिलते हैं जो कि यूज करे जाते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर। देन बच्चों डिफरेंट क्रॉप्स जो है वो सूटेड होते हैं कि वो डिफरेंट क्लाइमेट में ही ग्रो कर पाते हैं। फॉर इंस्टेंस बच्चों राइस जो है वो अच्छे से ग्रो कर पाता है फ्लडेड फील्ड्स में, बट वीट को कैसा रीजन चाहिए होता है, सूखा हुआ रीजन यानी कि ड्रायर रीजन्स चाहिए होते हैं। नाउ द सक्सेसफुल कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स ये रिक्वायर करते हैं केयरफुल प्लानिंग एंड अटेंशन टू फैक्टर्स जैसे कि सॉइल हेल्थ, वाटर अवेलेबिलिटी एंड पेस्ट कंट्रोल। सो बच्चों एक अच्छी क्रॉप उगाने के लिए हम लोगों को वाटर अवेलेबिलिटी चाहिए होती है, सॉइल की अच्छी हेल्थ चाहिए होती है एंड पेस्ट कंट्रोल भी वहां पर होना चाहिए। देन बच्चों वी हैव टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। हम लोगों ने क्रॉप्स को कैटेगराइज किया है टू मेन टाइप्स में। सो वी हैव खारिफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। सो बच्चों खारिफ क्रॉप्स जो है वो कब सो करी जाती है, एट द स्टार्ट ऑफ रेनी सीजन्स, एंड उनको हार्वेस्ट करा जाता है यानी कि उनको काटा जाता है इन दी ऑटम। फॉर एग्जाम्पल्स बच्चों खारिफ क्रॉप्स के अंदर आते हैं राइस, मेज एंड कॉटन। एंड बच्चों इन क्रॉप्स को चाहिए होता है लार्ज अमाउंट में वाटर, तभी बच्चों इनको कब सो करा जाता है, रेनी सीजन के टाइम पे। ऑन दी अदर हैंड रबी क्रॉप्स उसको हम लोग सो करते हैं विंटर में एंड देन उनको हार्वेस्ट करा जाता है यानी कि काटा जाता है स्प्रिंग में। एग्जाम्पल बच्चों रबी क्रॉप्स का क्या हो सकता है, वीट, बार्ले एंड पीस। एंड बच्चों इन क्रॉप्स को चाहिए होता है कोल्डर रीजन एंड लेस वाटर, तभी इनको हम लोग सो कर देते हैं इन दी स्टार्टिंग ऑफ विंटर। नाउ बच्चों वी हैव अमेजिंग फैक्ट ओवर हियर। डिड यू नो दैट वीट वो क्या होता है, वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्रॉप है जिसको कल्टीवेट कर रहे हैं ह्यूमंस। एंड बच्चों इट हैज बीन ग्रोन फॉर ओवर 10,000 years and continues to be staple food in many parts of the world. So बच्चों oldest crop क्या है जिसको हम लोग grow कर रहे हैं, that is wheat. Then we have healthy crops. So बच्चों growing healthy crops वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है to ensure a good harvest, and बच्चों farmers जो है उनको provide करना चाहिए right conditions crop को जिससे हमारी crops जो है वो healthy हो। and वो right conditions क्या हो सकती है, rich soil, adequate water, right amount of sunlight. In addition to this बच्चों
क्रॉप्स को जो है वो प्रोटेक्शन भी चाहिए होती है फ्रॉम पेस्ट, डिजीजेस एंड वीड। तो बच्चों फार्मर ऑफन यूज नेचुरल मेथड, सो फार्मर यूज करते हैं नेचुरल मेथड जैसे कि क्रॉप रोटेशन या फिर बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, जिससे उनकी क्रॉप्स जो है वो हेल्दी रहती है। ना बच्चों इंश्योरिंग दैट क्रॉप्स जो है वो वेल नरिश्ड हो एंड उनको प्रोटेक्ट करा जाए, हेल्प्स मेंटेन फूड सिक्योरिटी एंड सपोर्ट करता है ये इकोनॉमी को। सो बच्चों अगर हमारा फार्मर्स अच्छे से क्रॉप्स को ग्रो करेंगे तो इसका मतलब सबको खाना मिलेगा एंड बच्चों इसकी वजह से हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर, हमारी पूरी कंट्री के अंदर फूड सिक्योरिटी मेंटेन रहती है एंड देन हमारी कंट्री की इकोनॉमी जो है वो भी ग्रो करती है। ना बच्चों इट्स टाइम टू रिकॉल सीड्स जो है उनके अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो, सीड कोड एंड स्टोर्ड फूड। जर्मिनेशन बच्चों एक प्रोसेस होता है जिसमें सीड ग्रो करता है सीडलिंग के अंदर अंडर द राइट कंडीशन। देन बच्चों सीड्स जो है वो डिस्पर्स होती है विद विंड, वाटर एंड एनिमल्स, जिसकी वजह से वो ग्रो हो जाती है न्यू एरियाज के अंदर। देन प्लांट्स जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रू सीड्स या फिर वेजिटेटिव पार्ट्स जैसे कि रूट, स्टेम्स और लीव्स। एंड बच्चों क्रॉप्स को क्लासिफाई किया गया है खारिफ एंड रबी के अंदर एंड बच्चों ये बेस्ड होते हैं ऑन द सीजन जिसके अंदर वो ग्रो होते हैं। एंड बच्चों हेल्दी क्रॉप जो है वो रिक्वायर करती है प्रॉपर केयर एंड प्रोटेक्शन। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द चैप्टर आपके पास यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज है जिनके अंदर आपको इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। सो बच्चों दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई होप आप सब लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।